Welcome back students of 7th class. This is mathematics lecture. Friends, in this video lecture we will solve a couple of questions of exercise 20a. This is chapter 20 and the chapter name is mensuration. So friends, let's get started. Now see friends, question number 8. See friends, question number 8 says the length of a breadth of a rectangular now see friend, the length and a breadth of a rectangular piece of land are in the ratio of 5:3. Okay, if the total cost of fencing it at 24 rupees per meter is rupees 9,600, find its length and breadth. First friends, we have to make the rectangular land. Have a look friends, this is the rectangular land, and now the length and breadth given are in its ratio friends. Now we take the length as, suppose 5x, in length and breadth are in x form. Okay, this is also 5x, and breadth friends, this is 3x. Okay, this is also 3x. Opposite side of rectangle are equal friends. If the total cost of fencing it 24 rupees per meter is 9,600 रुपीज. कह रहा फ्रेंड्स, एक मीटर को 24 रुपीज इसकी क्या कॉस्ट लगती है. ओके, फेंस करने के लिए अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है तो 1 मीटर फेंस करने की कॉस्ट कितनी की गई है फ्रेंड्स, 24. और उस तरह से टोटल कितनी कॉस्ट दी गई है, 9,600. दैट मीन्स फेंस मतलब इस घेरा की. हैव अ लुक फ्रेंड्स, इस पेरीमीटर को घेरना फेंस, यही फेंस है फ्रेंड्स. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, फेंस है. इस फेंस को फेंस करने में, यानी इस घेरा को फेंस करने में कितने खर्च होता है, 9,600. जबकि दिया हुआ है पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी दी है, 24. तो मुझे फाइंड करना है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी. ओके फ्रेंड्स, नाउ सी, हैव अ लुक फ्रेंड्स. First we have to find out the total fence of this rectangular. Now the fence means friends perimeter. Now perimeter of rectangle P is equal to 2 into L plus B. Okay. So P is equal to friends 2. L की value this is 5x and plus 3x. So P is equal to friends 2 multiplied by this is 15. Sorry, 5 3 8x. Therefore friends, P is equal to 16x meter. Look friends, have a look. Total fence is given. Total fence is 16x meter. That means the perimeter of this rectangular land is 16 meter. Perimeter means friends, this length plus this length plus this plus this. Okay. And now one thing is given friends, 1 meter, the cost of 1 meter is 24 rupees. Okay. If friends, if you multiply this 16x meter with 24, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें फ्रेंड्स तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकल जाएगा, और ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ. ओके, नाउ फ्रेंड्स आफ्टरवर्ड्स टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यानी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने में कितनी खर्च लगेगा फ्रेंड्स. 1 मीटर का 24 दिया हुआ है, तो इतनी मीटर का 6 मल्टीप्लाई बाय 24, इतनी कॉस्ट. और हैव लुक फ्रेंड्स, क्वेश्चन में वन थिंग इज गिवन है, टोटल फेंस का खर्च कितना दिया हुआ, 9,600. ये भी फ्रेंड्स क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द सेम रेक्टेंगुलर प्लॉट, और ये है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द सेम रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड. ओके, तो ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट है. दोनों कॉस्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कह सकते हैं
this 16x multiplied by 24 is total cost is equal to total cost 962 times 0. Now friends, so x is equal to actually something is wrong. Now friends, see the value of x is equal to friends 962 times 0. 16 क्या होगा, डिवाइड में आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई, 16 24 क्या डिवाइड में, क्योंकि दोनों क्या है फ्रेंड्स मल्टीप्लाई में है. नाउ सी, अब नो विल गेट कैंसिल बाय 4 से फ्रेंड्स विल गेट कैंसिल, 4 4 जा 16 1 जा 16 16 6 जा 16 1 जा 16 6 जा 96. Okay, now 6 4 ja friends and 6 1 ja 2 times 0 and 4 1 ja and 4 25 times. So x is equal to 25. Now friends, we can find out the length. So the length is friends L is equal to 5x. So this is 5 multiplied by 25 becomes L is equal to 125 meter. This is the first answer. Now b breadth friends, this is 3x, 3 multiplied by x की वैल्यू यहाँ 25, तो b is equal to 75 meter. So friends, L length 125 and breadth 75 meter. These are the answer this question. I hope you will be clear. Okay. Now see friends, next question number 9. Find the length of the largest pole that can be placed in a hall 10 meter long, 10 meter wide and 5 meter high. Now friends, एक हॉल है जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई फ्रेंड्स 5 मीटर है. तो मुझे फाइंड ये करना है कि इस हॉल में सबसे लंबी पॉल किस पोजीशन पे आएगी, कौन सी होगी. नाउ फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने कमरे को, हॉल को, ओके, तो एक कॉर्नर से अगर दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से अगर एक पॉल लेके जाएंगे फ्रेंड्स, या बांस मान लीजिए बम्बू, और इसके अपोजिट कॉर्नर तक ले जाएंगे, तो ये लेंथ जो होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट लेंथ होगी. दैट मीन्स फ्रेंड्स इस लार्जेस्ट लेंथ को क्या कह सकते हैं, यस फ्रेंड्स डायगोनल कह सकते हैं. दैट मीन्स फ्रेंड मुझे डायगोनल फाइंड करना है. डायगोनल इस रूम क्या होता है फ्रेंड्स, क्यूबॉइड शेप में होता है. ओके, और फ्रॉम फॉर्मूला हम जानते हैं फ्रेंड्स, क्या फ्रॉम फॉर्मूला diagonal of cuboid friends under root L square plus B square plus H square means length square plus breadth square और plus height square. ओके फ्रेंड्स, यही सबसे ज्यादा लेंथ ग्रेटेस्ट हाइट होगी, लार्जेस्ट हाइट होगी. अब यहाँ पे फ्रेंड्स द गिवन पॉइंट्स क्या है, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, डायगोनल ऑफ द for diagonal L की वैल्यू फ्रेंड्स अंडर रूट L की वैल्यू दिस इज L 10 स्क्वायर, once again B की वैल्यू 10 स्क्वायर एंड H की वैल्यू दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. नाउ फ्रेंड्स 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सॉरी 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100 एंड दिस इज 25. इसे फ्रेंड्स ऐड करेंगे तो 225. रिमेंबर फ्रेंड्स 225 किसके वर्गमूल, किसके स्क्वायर रूट होते हैं, 15. तो 15 फ्रेंड्स इसका 15 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर. वी कैन से द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉल इज 15 मीटर. दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर जो 10 है फ्रेंड्स, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इच हुज साइड इज मेजर. वन साइड इज दिया फ्रेंड्स और एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे और आंसर आएगा. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सेज फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज. फ्रेंड्स if you recollect the knowledge from previous time friends, previous knowledge, then you know the area of the square in the form of diagonal. Here friends, first from formula, what formula friends, area of a square in the form of diagonal के form में एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, 1/2 into diagonal, d for diagonal square, 1/2 into diagonal square, d for diagonal friends, diagonal, this is the diagonal of a square. Have a look, ये square है friends. okay,
और इसकी ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये या फिर ये कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो हाफ डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल कितने दिए फ्रेंड्स 72, तो हाफ गुने 72 मल्टीप्लाई बाय 72, स्क्वायर मीन्स फ्रेंड्स 2 टाइम्स, इसको इस तरह से 2 3 जा एंड 2 6 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 72, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज आंसर। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी understand. Now similarly we can solve the next sub question 2.4 friends. Here to find the area of the square, the length of the diagonal is दिया हुआ from second numbers के लिए. Now diagonal of a square is given 2.4 meter. Okay friends, from formula आप लगाएंगे area of square friends, A for area of square friends, half diagonal square. Okay, so area as it is half and difference D is here, diagonal of square 2.4 2 times because स्क्वायर है, स्क्वायर के मतलब 2 बार इसे लिखेंगे। अब नाउ इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, D की जगह आप यहाँ पे 2.4 का स्क्वायर, नेक्स्ट लाइन पे आप 1/2 इंटू 2 बार 2.4 2 टाइम्स 2.4 लिखेंगे और यहाँ से कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स, 2 1 जा 2 2 पॉइंट 2 2 जा 4, आप 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से, यानी फ्रेंड्स इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी अंडरस्टैंड, दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 says the area of square is 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। नाउ फ्रेंड्स एरिया दिया हुआ, मुझे क्या डायगोनल फाइंड करना। ओके, ये डायगोनल मुझे फाइंड कर, एनी वन ऑफ द डायगोनल, चाहे ये या फिर ये। एरिया इज गिवन फ्रेंड्स, एरिया इज गिवन 16,200 मीटर स्क्वायर इज गिवन। ओके, डायगोनल मुझे डी फाइंड करना। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी फ्रेंड्स, there are two formulas of area, because the area of a square is equal to half diagonal square and the area of a square is equal to side square. We can apply both the formula here and find out. First we have to find the length of the diagonal. Now friends, from formula, बट फ्रेंड्स इट्स वेरी इजी, आसान ये रहे कि आप वो वाले फॉर्मूला लगाएं जो एरिया और डायगोनल का रिलेशन में है। जो एरिया का फॉर्मूला डायगोनल के रिस्पेक्ट में जो डिफाइन की जाती है, यानी एरिया इक्वल टू फ्रॉम द फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया क्या हो जाएगा हाफ डायमीटर का स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर आएगा। ओके, डायमीटर यहाँ पे सॉरी डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, पहले इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं। एरिया कितना दिया हुआ फ्रेंड्स 16,200। ओके, और हाफ और डी तो मुझे फाइंड करना था, डी स्क्वायर एज इट इज फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे फ्रेंड्स, हैव अ लुक, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 तो छुपा हुआ है। ओके, तो डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डी स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई बाई 16,000, दिस इज 200। नाउ फ्रेंड्स डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर डी को स्क्वायर को अगर रिमूव करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट आएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस इज 0 0 4 एंड नाउ दिस इज 32। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स इस डी को आप इस तरह से इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। 324 मल्टीप्लाई बाई 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सर वापस तो ये आएगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसे और ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। 324 ये किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, 18 का स्क्वायर है, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा, और इंटू फ्रेंड्स ये 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। नाउ अब डी को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हैव अ लुक, डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 18 का एक पेयर है फ्रेंड्स, 1 ये बाहर आ गया, और 10 का एक पेयर है, 10 का एक पेयर है तो एक 10 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो डी की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो गई 180 मीटर है, तो मीटर, ये आपका आंसर। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। नो फ्रेंड,
और सेकंड मेथड ये है फ्रेंड्स, फ्रॉम फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, दिस इज साइड स्क्वायर। और यहाँ फ्रेंड्स एरिया कितना दिया हुआ है 16200 और साइड स्क्वायर एज इट इज, मुझे साइड पहले निकाल लेना है। नाउ फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट करना होगा। अब पहले साइड फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करने के बाद डायगोनल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, इसे आप ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। दिस इज 162 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 8 या 9 9, डेट मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 1, इसको आप लिख सकते हैं। दिस इज साइड स्क्वायर, दिस इज 9 इंटू 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस इज 10 इंटू 10। अब लिख फ्रेंड्स 100 को आप लिख सकते हैं इस तरह से साइड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ फ्रेंड्स इसका पेयर है। अब यहाँ साइड बराबर अगर लिखे फ्रेंड्स, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू ये 90 और इंटू 90। ओके फ्रेंड्स, 90 मल्टीप्लाई बाई 90, हैव अ लुक फ्रेंड्स, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 90 और फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 90, और ये 2 यहाँ पर अकेला रह जाएगा। ओके, अब यहाँ से फ्रेंड्स साइड इज इक्वल टू क्या फाइंड कर सकते हैं, साइड इज इक्वल टू पेयर में जो रहता है फ्रेंड्स उसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, एक सिंगल, और बाकी इसका कोई पेयर नहीं, ये अंदर आ जाएगा। ये साइड आपकी ये आ गई फ्रेंड्स। ओके, नाउ इस स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 90√2 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे इसे डायगोनल निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड। नाउ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड। ओके, नाउ फ्रेंड्स √2 तो √2 एज इट इज है, साइड की वैल्यू फ्रेंड्स 90 मल्टीप्लाई बाई √2। लुक एट द फ्रेंड्स, 90 को आप शुरू में लिख दीजिए और ना √2 और √2। फ्रेंड्स जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 2 ही आएगा। ओके, इफ यू मल्टीप्लाई √2 बाई √2 बिकम्स 2। ओके, तो ये 2 आ गया फ्रेंड्स। अब जब 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 मीटर, उस मेथड से भी 180 और इस मेथड से भी फ्रेंड्स 180 मीटर। आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स सी क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन and says the area of a square field is half hectare, find the a length of its diagonal in meter। so friends area दिया हुआ, ओके हेक्टेयर में जब एरिया दिया हुआ फ्रेंड्स मुझे डायगोनल निकालना, तो सबसे आसान फॉर्मूला डायगोनल और एरिया का जो फॉर्मूला है दैट मीन्स कह सकते हैं फ्रेंड्स एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, बट हेक्टेयर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, बिकॉज फ्रेंड्स मुझे डायगोनल जो निकालना है वो क्या किस में निकालना है, मीटर में निकालना। ओके, नाउ फ्रेंड्स यू नो 1 हेक्टेयर क्या होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू फ्रेंड्स होता है, दिस इज इतना मीटर स्क्वायर, 1/10,000 लाख यानी 1 लाख मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। नाउ सिंस फ्रेंड्स तो हाफ हेक्टेयर कितना हो जाएगा, हाफ हेक्टेयर HEC हेक्टेयर, हाफ मल्टीप्लाई बाई 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दे 1/10,100,000 सॉरी 10,000 1/10,100,000 10,000 यानी 1 पे 10,000। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू फ्रेंड्स 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ हाफ दैट मीन्स हाफ, अब हाफ से तो कट जाएगा, हाफ 2 1 2 एंड 2 5 10, 3 टाइम्स 0, तो 5 3 टाइम्स 0 मीटर। दिस इज फ्रेंड्स क्या ये एरिया है, एक्चुअली एरिया इतना गिवन था। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स, दिस इज 5,000 मीटर स्क्वायर। ओके, ए फॉर एरिया। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, डायगोनल, दैट मीन्स वी मेक ए रिलेशन इन बिटवीन एरिया एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो एरिया और डायगोनल के स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से फ्रेंड्स डायगोनल की वैल्यू, यहाँ से एरिया तो आप निकाल सकते हैं, दिस इज एरिया तो निकला हुआ 5,000, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे हाफ और डी स्क्वायर एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रेंड्स 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर 1 डी स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स डी स्क्वायर को आप लेफ्ट में लिख देंगे,
और इसे मल्टीप्लाई करके आप राइट में लिख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, तो d इज इक्वल टू फ्रेंड्स अंडर रूट 10,000। 10,000 का अगर स्क्वायर रूट फ्रेंड कितना आएगा, दिस इज 100 मीटर इसका आंसर। डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर इज फ्रेंड्स 100 मीटर। आई होप फ्रेंड्स you will be clear and you will enjoy with this video lecture. If you have any doubt, confusion, ask me, I will make. And friends, now your homework is question number 8 to 13. Okay, have a nice day.